Thank you, Doctor. Grateful to you, Arvind. Thank Grateful you, to you, Professor. All right, sir. All right, sir. So now we'll go to our last session of the day, and I like request Dr. Guneet to introduce our speaker. Thank you so much, sir. It's an honor to introduce the next speaker, Dr. Ramanath Pandey. Dr. Ramanath Pandey is an eminent scholar of Indology, working as a senior research officer at Oriental Institute of the Maharaja Sayaji Rao University of Vadodara. Besides this, he is managing director of Indian Society for Indic Studies. He is alumni of University of Delhi, India. He is also member at Board of Directors of 13 International Society of Universal Dialogue, 13 World Congress Jazz, Austria. His specialized fields are Sanskrit, Pali, and Prakrit language and literature. In Indian philosophy, it is Vedanta, Buddhist studies, logic, linguistic, and manuscriptology. He has more than 30 years research experience, including teaching in the field of Indic studies, presently working on various fields of Indology. His main impact creation towards Indological study is applied ancient Indian wisdom for educational and social transformation. He has visited many international places like Osaka, Japan, Poland, Peru, Montreal, Canada, and contributed his research papers. We welcome you, sir, and request you to address the gathering. Thank you, Dr. Thank you. Today, my topic is imbibing Vedic wisdom for transforming modern education. The topic I have taken, Dr. Akhil Agrawal asked me to speak on the ancient Indian wisdom. So this is my favorite topic, there is no doubt. So today I have selected from all my book, the topic is imbibing Vedic wisdom for transforming modern education. So I have taken some outline. So outline is based on the topic. The first term is the wisdom, then Vedic wisdom, then imbibing Vedic wisdom. What is the imbibing Vedic wisdom? I will explain. Then education, then modern education in context of ancient education, then transforming education. These are the outlines on which I am going to speak. So first, the term is wisdom. Wisdom is very important term, and actually most of the people confusing in getting the meaning of wisdom. What is the wisdom? Generally, when we will see in the encyclopedia or in dictionary, we will find the synonym that is like knowledge. Ramnath sir, I'm just interrupting. One request, आप आपका जो पीछे ट्यूबलाइट है उसको बंद कर देंगे. We'll be able to say your face very clearly, sir. Just a minute. Because of that, I think there is a small this thing. Yes, now sir. It's okay. Slightly better. Actually, वो पीछे का जो Should background I light close है, other light also? Should I close the other light also? you can try because yes, sir, it is far better now. Now we can see the expressions on your face, sir. तो आनंद आएगा थोड़ा. So wisdom, when we talk about the wisdom, people are getting confused. What is the meaning of wisdom? When we see in the translation, even in the English or encyclopedia, we find so many words, but that is not the exact word in which we have used in my or research paper and in the context of ancient Indian wisdom. So wisdom means, when we translate in Hindi, that is the Pandit, Durdarshita, Vivek. So many words are there. Gyan, Anubhav, Samaj, सामान्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके
समझने, सोचने और कार्य करने की क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो हमारे शास्त्र हैं, वैदिक स्क्रिप्चर है, उसमें जो भी विचार, जो भी ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनको पढ़ना एक अलग बात है, उनको समझना एक अलग बात है, पर उन विचारों को क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसको सोच करके अपने जीवन में उसका प्रयोग करना, ये विजडम। उसके लिए शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा टर्म दिया है, विवेक, इन हिज टेक्स्ट ऑफ विवेक चूड़ामणि। विवेक इज द exact word of the wisdom, we can say almost exact, not exact but most nearest term of the wisdom, that is the vivek। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करना। सो इस अर्थ में ज्ञान या जो भी हमने अपने जीवन में अध्ययन के माध्यम से या अपने डेली जीवन में, दैनिक प्रयोग में, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत व्यवहार में, जो भी हमने अनुभव गेन किया है, उसका विवेक पूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो विजडम है। अब जो है वैदिक विजडम, जब वैदिक विजडम की बात करते हैं तो वैदिक टर्म भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको कि क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड वैदिक कर दिया, वेद का वैदिक कर दिया, और संस्कृत में जो संस्कृत का टर्म है, जब ठक प्रत्यय, इक प्रत्यय जब लगता है तो वेद से वैदिक होता है। माने जिस चीज से जो चीज उत्पन्न होता है उसमें वो इक प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो वैदिक का मतलब हुआ जो वेद से उत्पन्न हुआ, ये शाब्दिक अर्थ है। पर एक्चुअली जब हम वैदिक की बात करते हैं, वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, तो उसमें केवल वेद का समावेश नहीं होता। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो चार तो हैं ही, उसके अलावा जो उसके अंग हैं उनका भी समावेश होता है। पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, तो उन शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण अंग है वो उपनिषद है। इसलिए वैदिक विजडम की जब हम बात करते हैं तो समस्त वैदिक साहित्य में लोग यही समझते हैं कि मात्र उपनिषद और वैदिक ही है। ऐसा नहीं है। जो गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेदांत है, इन सबका भी समावेश है। जो वेद का जो अंतिम पोर्शन है वो जो है वेदांत है, जो शाब्दिक अर्थ के अनुसार। अब परस्पर हम जो है जब इसकी बात करते हैं, क्योंकि गीता जो है कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश है, जबकि वेद सामान्य रूप से मंत्र और गीत हैं वेदों के, जो आध्यात्मिक विचारों के बारे में अभिव्यक्त किए गए हैं। तो गीता, रामायण और महाभारत में जो बात है वो है वेद पर ही आधारित, किंतु क्योंकि उसको जो है किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा है, व्यक्ति विशेष ने उसको जो है कहा है, उपदेश दिया है, इसलिए उसको हम जो है शास्त्र, ओरिजिनल शास्त्र ना मान करके हम लोग केवल वेद को, उपनिषद को जो है वो मूल शास्त्र मानते हैं, क्योंकि वो ऋषियों की रचना है। तो अब जब हम इम्बाइबिंग वैदिक विजडम की जब हम बात करते हैं, तो इम्बाइबिंग वैदिक विजडम की जब बात करते हैं, तो वैदिक विजडम में जो विचार है, जो ज्ञान है, जो भी ऋषियों ने अनुभव किया है, उसको वैदिक लिटरेचर में, वैदिक वेद शास्त्रों, वैदिक शास्त्र में ऋषियों ने अनुष्ठित, ऋषियों के जो मौखिक चीजें हैं या जो उनके विचारधारा है उसमें अनुष्ठित है। तो उन विचारों को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में उनका प्रयोग करना जो है वो इम्बाइबिंग वैदिक विजडम है। माने उनको आत्मसात करना, उनको लेकर के क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका अपने जीवन में प्रयोग करना। तो जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने सोचा है अपने जीवन में, अपने अनुभव के आधार पर, जो कुछ भी हमने ध्यान के माध्यम से जो हम प्राप्त करते हैं, वे आम तौर पर
जो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनसे भिन्न है। तो जब हम इम्बाइबिंग वैदिक विजडम की बात करते हैं तो हम उनको जो वैदिक जो शास्त्रों में जो भी विचार, जो भी विद्या अनुस्यूत है, उनको हम अपने जीवन में उतारना, ये इसका अर्थ है। अब जो है, जो जीवित प्राणियों में, अब इसको क्यों ऐसा है, वाई इम्बाइबिंग वैदिक विजडम, तो उसका रीजन जो है देते हुए बहुत बढ़िया शंकराचार्य ने जो है वो विवेक चूड़ामणि में बड़ी अच्छी बात कही है कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम मतम पुंस तत्वम ततो विप्रता। मैं पूरा श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि जो है वो उसमें टाइम जो है बर्बाद होगा। तो इसमें कहने का मतलब कि जितने प्राणी हैं संसार में, उन सब प्राणियों में जो मनुष्य का जन्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें भी पुरुषत्व पाना अत्यधिक कठिन है। पुरुषत्व का मतलब पराक्रम, धैर्य इत्यादि गुण। पुरुषत्व का मतलब हमें मेल और फीमेल से नहीं लेना है। पुरुषत्व का मतलब जिसके अंदर जो क्वालिटीज है उनसे लेना है। धैर्य की क्वालिटी, जो अच्छे गुण है उनसे लेना है। पुरुषत्व में जो उत्साह जो अंदर उत्पन्न करते हैं उनसे संबंधित है। और उन सभी की तुलना में वेदों का अर्थ सहित अध्ययन बड़ा दुर्लभ है। और अगर अध्ययन भी कर लिया तो उसको जो है समझना बड़ा दुर्लभ है। और इन सबसे अधिक जो विद्वान होना बड़ा दुर्लभ है। समझने के बाद अध्ययन भी कर लिया, समझ भी लिया, पर जरूरी नहीं है कि वो विद्वान हो। तो शास्त्रों में आत्म और अनात्म का विवेक करना जो है वो विजडम है। और वो जो विजडम है, वैदिक विजडम जो है, उसको वो करना सांसारिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए वो बहुत जरूरी है। वास्तव में मुक्ति प्राप्त होने का कोई संयोग, मुक्ति की जब बात हम करते हैं, अब ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन को जब हम इससे जोड़ेंगे तो शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की अव्यक्त शंकाओं में उत्कृष्टतम को बाहर निकालना तथा आंतरिक व सांस्कृतिक विकास करना है। एक ये है। अब जो है इसमें स्वामी विवेकानंद का एक कोट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। माने मनुष्य के अंत में ऑलरेडी जो है शिक्षा जो है वो विद्यमान होती है, ज्ञान जो है वो विद्यमान होता है, किंतु उसको बाहर निकालना, हम लोग 100 में से 10% भी अंदर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो शिक्षा जो है वो, शिक्षा का कार्य ये है कि उसको मैक्सिमम मात्रा में उसको बाहर निकालना, अंदर से बाहर अभिव्यक्त करना। तो इसमें जो है, इसके बाद जो है जब मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि द एजुकेशन जो विच इज गोइंग टू बी टॉट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, जो जिसका हम अध्ययन करते हैं जिस ढंग से। मॉडर्न एजुकेशन टीचेज अबाउट द स्किल्स required today, the skills of science and technology, science of medical science, etc. In addition to listening, the modern education includes writing, visualizing, imagining and thinking skills, etc. अब जो ये एजुकेशन है, जो स्कूल का या कॉलेज का जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमें वास्तव में जीवन में खुशी प्रदान नहीं करते। ट्रांसफॉर्मिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जितने हम बचपन से लेके, नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक जो भी हम अध्ययन करते हैं, वो हम ये सोच करके सोचते हैं कि हम जीवन में, हम कोई इंजीनियर सोचता है इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई कुछ, उनका मतलब ये उद्देश्य होता है। किंतु जो प्राचीन काल में जो एजुकेशन का उद्देश्य है वो ये नहीं था।
उसका उद्देश्य वो एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा है कि या विद्या सा विमुक्तये, ऐसी विद्या जिससे मुक्ति मिले। अब मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी होना और फिर उसके बाद सांसारिक उससे व्यवहार से जो है छुटकारा पा जाना, या मरने के बाद जो प्राप्ति होती है मुक्ति, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब जो है बड़ा अच्छे ढंग से जो है बताया गया है कि मुक्ति का मतलब ये है कि सांसारिक जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना हो, या स्वास्थ्य हो, या कोई भी चीज हो जिसे हम लोग जो है जो पाना चाहते हैं, उन सब से परे वास्तविक खुशी की प्राप्ति, वो मुक्ति, दुख की प्राप्ति, हम स्वस्थ रहें, हमारा चित्त जो है वो आनंद रहे, इसके लिए एंशिएंट इंडियन विजडम में, वैदिक विजडम में या वेदांत में इसके लिए बड़ा अच्छा टर्म दिया है, सत चित्त आनंद, सच्चितानंद। सत, चित्त और आनंद। चित्त और जब आनंद की बात करते हैं तो चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस है, वो विजडम है, नॉलेज है, उसमें सब इंक्लूडेड है। चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस है और आनंद माने रियल हैप्पीनेस है, तो उसकी बात करते हैं। तो हम जो प्रेजेंट जो एजुकेशन हम देख रहे हैं, उस एजुकेशन में हम देखते हैं कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वो है क्या, वो जो है अंग्रेजों की दी हुई है। एक तरह से अंग्रेजों के काल में जो शिक्षा हमें मिली उसी को हम दूसरे ढंग से पेश करते आ रहे हैं शुरू से लेके आज तक। और वो शिक्षा जो है, इस शिक्षा की जो प्रणाली है वो इसलिए अंग्रेजों ने की जिससे कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके, सबसे बड़ी बात। किंतु जो शिक्षा का जो है, शिक्षा एक पवित्र प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो पवित्र प्रक्रिया है। इसका वास्तविक उद्देश्य जो है वो मनुष्य की अव्यक्त संख्याओं में से उत्कृष्टतम को बाहर निकालना तथा आंतरिक व सांस्कृतिक विकास, माने आंतरिक विकास और सांस्कृतिक विकास, जो भी क्वालिटीज व्यक्ति के अंदर मौजूद है उसको हमें अभिव्यक्त करना, ये वास्तविक में शिक्षा है। तो जब हम एंशिएंट इंडियन विजडम की बात करते हैं तो उसमें मैंने जो है उसके पॉइंट लिए हैं कि उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञानम तु किमर्थम यदि न हिताय, ऐसे शिक्षा से, ऐसे नॉलेज से क्या लाभ यदि वह भलाई के लिए ना हो, लोगों की भलाई के लिए ना हो, समाज की भलाई के लिए ना हो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ज्ञानम तु किमर्थम यदि न हिताय, ये जो है इसमें जो है जब हम बात करते हैं कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण जब तक ना हो शिक्षा से, तो उस शिक्षा का लाभ क्या है? ये एंशिएंट विजडम हमारा कहता है, ज्ञानम तु किमर्थम यदि न हिताय। अब दूसरा वर्ड इसी तरह से, दूसरा टर्म जो है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जो उनका मेन पर्पस एजुकेशन का है कि सारे लोग, सभी लोग, हर एक प्रकार के, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, माने उसमें न धर्म जाति इत्यादि से कोई लेना देना नहीं, प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति जो है वो सुखी हो। लोका समस्ता सुखिनो भवेयु। अब जो है लोका समस्ता सुखिनो भवेयु जो है, इसमें वैदिक विजडम जो है, वैदिक लर्निंग जो है, उसको समराइज किया गया है। दिस इज वेरी सिंपल मीनिंग। It is suggested that we are all the same as a biological brotherhood, that we should show love for each other in our hearts so that we do not disrespect or envy each other. Then by accepting this feeling, our hearts simultaneously, we can create energy in our inner being. And at the same time, we can get peace, because what is there is neither in nor for it.
So it is very important. Loka samasta sukhino bhavantu. Why it is said that Loka samasta, or how it is possible I am getting knowledge and all will be happy? So it is so in our ancient wisdom there is very important passage in Brihadaranyaka Upanishad. There is it is written that Yam Prithvi Sarvesam Bhutanam Madhu. इसका मतलब क्या है कि एंटायर अर्थ का मतलब कि केवल पृथ्वी ही नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि में जितने प्राणी हैं उसके लिए ये पृथ्वी जो है वो अमृत है। यम पृथ्वी सर्वेशाम भूतानाम मधु, दिस इज द नेक्टर, माने अमृत है वो सारे समस्त पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो प्राणी जो है लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सभी के लिए वो अमृत है, नेक्टर है। ठीक उसी तरह से सारे प्राणी उस पृथ्वी के लिए अमृत है, मधु है। मधु माने अमृत, नेक्टर। तो मैंने यहाँ क्यों क्या कहना चाहता है ये कि दोनों एक, देयर इज ए रेसिप्रोकल सिस्टम। अगर हम पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लोका समस्ता सुखिनो भवेयु, हम लोग किस लिए कामना कर रहे हैं कि लोग क्यों सुखी, सारे लोग सुखी हों। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम जो है, जब सारे लोग सुखी होंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, अन्यथा हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए लोका समस्ता सुखिनो भवेयु ये कहा। इसीलिए हमें कहते हैं कि अब जब दूसरा पॉइंट जब हम लेते हैं, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया सा विद्या या विमुक्तये। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, जो दूसरा पॉइंट है सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे। अब मुक्ति प्रदान का मतलब जो है शास्त्रों में ये कहा गया है कि ज्ञान वह है जिससे हम मुक्त होते हैं। अब ज्ञान वह है जिससे मुक्त कैसे होंगे, तो मुक्त कहने का मतलब ये मुक्ति से नहीं है, मोक्ष से नहीं है। मोक्ष तो ठीक है, वो सन्यासियों के लिए आजाद, वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो एक अलग चीज है। और सामान्य लोगों की जब हम बात करते हैं, जब शिक्षा, तो सामान्य लोग भी उससे जुड़े हुए हैं ना शिक्षा से। तो हमारा कहने का मतलब कि सामान्य लोग के संदर्भ में मुक्ति क्या है। सामान्य लोग के संदर्भ में मुक्ति का मतलब यही है जिससे हम रोग से, किसी प्रकार के शोक से, दुर्भावना से, पाप से, नीचता से, दासता से, गरीबी से, बेरोजगारी से, किसी प्रकार की कमी ना हो, माने अभाव से, अज्ञानता से, बुरे भाग्य से और दुर्भावनाओं से और गुलामी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। वो शिक्षा, जो शिक्षा इन सब से मुक्ति अगर दिलाती हो तो वो वास्तविक में विद्या है, अन्यथा नहीं। ये कहने का मतलब ये है। अब इसमें जो है, जो पूरा श्लोक कहा है, जो इस तरह से कहा है, तत्कर्म यत्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाय अपरं कर्म विद्या अन्य शिल्प नैपुणम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि द एक्चुअल कर्मा इज द वन फ्रॉम विच द पर्सन इज नॉट बाउंड इन बॉन्डेज। पहला। दूसरा क्या, ट्रू लर्निंग इज द वन दैट गिव्स साल्वेशन। साल्वेशन माने वही फ्रीडम, फ्रीनेस, मुक्ति। एंड ऑल अदर डीड्स, ऑल अदर एक्शंस बिकम मेयर कॉजेज ऑफ बॉन्डेज, whose action often lead to worries and trouble। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निष्काम कर्म का जो भावना है, जो गीता में जिसको उपनिषदों, वेदों में भी है, वेदों से ही गीता में आया है, कठोपनिषद में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की जो भावना है वहां पे, वो कठोपनिषद में भी है। दूसरा श्लोक जो है वो ईशावास्योपनिषद का जो दूसरा श्लोक है, कुर्वन्नेवे कर्माणि, उसमें जो है ये भावना आई। और यही भावना जो है गीता में निष्काम कर्म के रूप में वहां बताई गई है। तो ये निष्काम कर्म की भावना जो है, उसी से हम मुक्त हो सकते हैं। वही शिक्षा में वही सबसे ज्यादा उपयोगी है।
ये कहने का मतलब, तो उस भावना को हमें समझना पड़ेगा। अब निष्काम कर्म को समझने का मतलब क्या है? निष्काम कर्म को समझने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल तो अपने आप मिलेगा, ऐसा नहीं है। गीता का या उपनिषद का या शास्त्र का ये कहना नहीं है। फल तो प्रत्येक व्यक्ति फल की इच्छा करेगा ही करेगा। फल की इच्छा के बिना एक मूर्ख व्यक्ति भी प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो जो निष्काम कर की भावना, उसका मतलब यह है कि फल के प्रति लगाव नहीं होना, अटैचमेंट नहीं होना। वो अटैचमेंट की मना कर, जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा कि तुम ये चीज मत खाना, रसगुल्ला मत खाना, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और वो आदमी की जो है वो ठीक है, वो नहीं खाता है क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा, पर उसका अंतः से ये भावना नहीं आती है कि मैं नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊं, खाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। तो निष्काम कर्म का मतलब यह है कि वो इच्छा, जो लगाव है उसके प्रति, उसके खाने का या किसी भी चीज का, वो लगाव, जो अटैचमेंट जो है वो समाप्त होना, वो फल की इच्छा। तो या विद्या सा विमुक्तये। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है, आत्मानम विद्धि। अब वैदिक विजडम क्या कहता है, जब हम अब जो क्या कहता है, हम लोग क्या करते हैं कि पूरे संसार, आज का एजुकेशन क्या है, मॉडर्न एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? साइंस डेवलप, बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी को लोग बड़ा डेवलप मानते हैं। ठीक है, डेवलप है, सब कुछ है। डेवलप इस सेंस में है कि जो हमें सुख सुविधाएं कि जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है। पर विकास तो का अर्थ वास्तव में डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट का अर्थ यह है कि किसी प्रकार का रोग ना हो। जैसे आजकल पैराडेमिक फैला हुआ है, दुनिया भर की बीमारियां हैं, तो किस बात का विकास? आधुनिक जो वैज्ञानिक है, उन लोगों ने क्या विकास किया जब ये सब सारी बीमारियां हो ही रही हैं? तो अब हमें ये सोचना है कि वास्तव में ये विकास है या नहीं है। तो आत्मानम विद्धि, एंशिएंट विजडम क्या कहता है, मॉडर्न एजुकेशन क्या कहता है कि पूरे संसार को जानो, पूरे साइंस को जानो, टेक्नोलॉजी को जानो, टेक्नोलॉजी की एक एक चीज को, समाज को जानो, देश को जानो, सबको जानो। एंशिएंट विजडम ये नहीं कहता। एंशिएंट विजडम कहता आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे तो पूरे विश्व का जो ज्ञान वो अपने आप हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को नहीं समझा, वो पूरे विश्व को क्या समझेगा? ये कहने का मतलब आत्मानम विद्धि। वैदिक विजडम सजेस्ट स्टडी ऑफ योरसेल्फ। आत्मानम विद्धि, इट इज द ग्रेट ओरेकल। नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। क्या है विजडम कह रहा है कि नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। अब नो दाई सेल्फ का मतलब यही हुआ कि जब आप अपने आप को जान जाओगे तो आप पूरे संसार को जान जाओगे, पूरे सृष्टि को जान जाओगे। क्योंकि मैंने कहा कि जो है पूरे संसार, पूरे सृष्टि में जो भी तत्व है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी पेड़ पौधों को पहुंचा रहे हैं नुकसान, इसका मतलब हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण और दुनिया भर की जो ये चीजें आती है वो क्यों आती है? वो इसी वजह से आती है क्योंकि हम इस भावना को नहीं समझते। तो हमें इस भावना को समझना। नो दाई सेल्फ माने जैसे जिस चीज से हमें कष्ट होता है उसी चीज से दूसरों को कष्ट होगा, इस भावना को समझना। तो हम अपने आप को सुखी क्यों देखें, हम अपने आप को प्रसन्न क्यों देखें, दूसरों को क्यों ना देखें? हमारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो हम अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता ना करें? तो वेद यही कह रहा है कि अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो। जब तुम आत्मा के बारे में तुम्हें ज्ञान होगा, अपने विषय में ज्ञान होगा, तो संसार के विषय में अपने आप ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए अलग से ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। जब आप जान जाओगे स्वयं को, वही कह रहा है कि इट इज द ग्रेट ओरेकल, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। देन स्टडिंग सेल्फ एज ए बेसिक प्रिंसिपल, it is not one's own, one person, it complex physical body mind. However, the principle that is the principle of all things, I have told you. Hence, the principle of study is the study of basic principles. Atman philosophy is the basic philosophy. That is the base of all kinds of philosophy. When it is none, you know the secret of all things. इसी को गुह्य विद्या बोलते हैं, गुप्त विद्या बोलते हैं।
ब्रह्म विद्या बोलते हैं, मधु विद्या बोलते हैं। अब जो है इसका जो है हमने ये दिखाया है, इसमें डायग्राम पावर पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, पर वो इसमें जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दिखाना, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसमें हमने जो दिखाया रिफ्लेक्टिव सेल्फ लर्निंग, आत्मानम विद्धि जो है वो क्या है कि रिफ्लेक्टिव सेल्फ लर्निंग, इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, ये मॉडल हमने बनाया हुआ, इसमें 5 डायग्राम बनाए हुए हैं, डू अप्लाई एंड रिफ्लेक्ट। सर वो शेयरिंग हमने ऑन किया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का। कर सकते हैं? हाँ, तो आप ना पहले प्रेजेंटेशन को आप इस विंडो के बाहर, जूम के बाहर पहले आप प्रेजेंटेशन को ऑन कर लीजिए और फिर जूम में वो शेयर होगा। हो जाएगा शेयर? हाँ मैं करता हूँ, मैं वो मेरे पेन ड्राइव में है, तो उससे मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। हाँ, इससे कॉपी करके उसे आप पहले खोल लीजिए और फिर इसमें शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड। हाँ सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ। ये मैंने खोल लिया, अब ये कैसे होगा ये? अब आप जूम में आइए और जूम में शेयर स्क्रीन का जो बटन वो है, टैब है, उसको नीचे आपको अपने इसको डेस्कटॉप पे कॉपी करने के बाद ही ना? हाँ, डेस्कटॉप पे कॉपी करके उसे बाहर खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, ये ओपन है। अच्छा। और हाँ बोलिए। उसके बाद आप जूम में आइए वापस से। हाँ, हमने खोल लिया, इसके बाद जूम में आऊं? हाँ, जूम में आइए वापस से। हाँ, और आ गया। वहां पे नीचे आपको ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन का टैब दिख रहा होगा। हाँ है ना, वहां पे उसे आप क्लिक करिए। तो जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो दिख जाएगा कि क्या आपको ओपन करना है, क्या आपको सर्च करना है, उसको क्लिक करके शेयर करना है आप। तो ये शेयर कर दूं मैं इसको? हाँ, शेयर या। तो अब तो उसके लिए मुझे ये स्क्रीन को नीचे करना होगा, फिर उसको करना होगा, कैसे करना होगा? नहीं, आप वो जब आपने यहाँ पे शेयर स्क्रीन किया तो वो आपको शेयर स्क्रीन में आपको फोल्डर्स और फाइल्स दिखा रहा होगा जिनको आप शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे वो आपका प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा होगा। यू जस्ट क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन एंड शेयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली शेयर इन दिस। ऊपर डायग्राम दिख रहा है सर जी? दिख रहा है? नहीं, पर मुझे कैसे करना? स्टॉप रिकॉर्डिंग और ये पॉज और शेयर? नहीं, स्क्रीन शेयर आपका व्यू करो, क्या करो? एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट सर, ये किसी और ने शेयर कर दिया है, जिसने। हाँ सर, आ गया। वी कैन सी दैट सर। या मैंने उसके बाद कहने का मतलब कि मुझे वो स्क्रीन नीचे करना होगा और वो केवल वो देखना होगा तो आ जाएगा, नहीं? हाँ, अभी हम देख सकते हैं सर, वी कैन सी इट हियर। अच्छा सर, हम सभी को दिख रहा है, शेयर हो गया है स्क्रीन। शेयर हो गया सर, वी कैन सी हो गया। या हम देखिए जो मेन जो पॉइंट्स है ना, वो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अप्लाइड वैदिक विजडम, इसमें से मैं ले रहा हूँ ज्ञानम तो किमर्थम। अब ये जो है या विद्या विमुक्तये और उसके बाद रिफ्लेक्टिव सेल्फ लर्निंग। अब ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ। लोका समझता, ये तो हो गया, लोका समझता सुखिनो। फिर ये आत्मानम विद्धि, ये हो गया। और रिफ्लेक्टिव सेल्फ लर्निंग, ये देखिए इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। सेल्फ असेसमेंट, आत्मानम विद्धि, डू अप्लाई एंड रिफ्लेक्ट। और देन रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या हुआ? ए वे ऑफ अलाउइंग स्टूडेंट्स टू स्टेप बैक फ्रॉम देयर लर्निंग एक्सपीरियंस टू help them develop critical thinking skills and improve on future performance by analyzing their experience. स्वाध्याय, इसको संस्कृत में स्वाध्याय, इसके लिए वर्ड जो है वो एकदम एग्जैक्ट टर्म है। वंस ओन रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी, यही आत्मानम विद्धि है, इससे अलग नहीं है।
लोग ये सोचते हैं कि नहीं तो वो तो आत्मा की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लर्निंग की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो उसके लिए जो आत्मानंद विधि के लिए जो एग्जैक्ट टर्म है वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय में और आत्मानंद विधि में केवल इतना अंतर है कि स्वाध्याय में हम अपने आप को जब बताते हैं तो उसका प्रोसेस भी बता देते हैं। जैसे आत्मावार, द्रष्टव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, जो है ना, जिसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 टर्म। श्रवण जो है ऑडियो हो गया, और मनन माने थिंकिंग हो गया, और श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है। ऑडियो, वीडियो, विजुअल जो है वो तो आता है। अब जो है इसमें जो प्राचीन जो काल का जो गुरुकुल सिस्टम है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न, जब ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न एजुकेशन की जब बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो पूरा गुरुकुल सिस्टम उठा करके जैसे वो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और उससे कुछ मिलना नहीं है। हमें वो मॉडल तैयार करना है आज के संदर्भ में। तो आज के संदर्भ में जब हम मॉडर्न तैयार करेंगे तो उसमें क्या है कि द आउटलुक चेंज वाज अफेक्टेड। प्रेजेंट सिस्टम में क्या है कि आउटलुक ऑफ लाइफ डज नॉट चेंज आफ्टर एजुकेशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बट यहाँ चेंज हो जाता है गुरुकुल सिस्टम में। वी हैव नो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर्स, आज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, वहां फादर और सन का रिलेशन था। वो स्टूडेंट्स बिकेम डिफरेंट जो है वो, उसमें जो है वो एंशिएंट पीरियड जो है टीचर वाज लाइक ए फादर टू द स्टूडेंट, और जो है दूसरा जो है गुरु, टीचर, द इंस्ट्रक्टर और द प्रोफेसर वाज आल्सो ए पेरेंट। दे वेर प्लेइंग द रोल लाइक ए पेरेंट, लाइक ए गार्जियन, नॉट लाइक टुडे। Or the influence of the teacher on the student is very important. So I will not take all the points. Now just see, during the past 40-50 years, tremendous technological developments are there in the world, made possible the establishment of Gurukul in the cyberspace. It is possible. We should keep in the mind cyberspace. Then cyberspace, the surrounding where communication through networking, through multimedia, may be regarded to the virtual computer world, and more specifically, an electronic medium used to form a global network to facilitate online communication. वर्चुअल रियली क्या है कि वो दैट इज द कॉन्सेप्ट हम लोग सब जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी के हैं, साइंस के लिए हुए हैं, उनके लिए तो आसान है और समझते हैं, पर सामान्य रूप से उसको एक्चुअली होना या आभास कराता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कि जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मैंने वो हमें जो है इसको मैंने आगे डायग्राम में दिखाया है, गुरुकुल इन साइबर स्पेस। अब गुरुकुल इन साइबर स्पेस ये मॉडल अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको देखिए। दिस मॉडल ऑफ लर्निंग इन वर्चुअल स्पेस is shown in the following figure. अब इसमें जो है गुरुकुल इन साइबर स्पेस, देन रिफ्लेक्टिव लर्नर, देन रिफ्लेक्टिव फैसिलिटेटर एंड वायरलेस नेटवर्क, ये दिखाया है, देखिए। और आज के जो पैंडेमिक है वो आज का पूरा कॉन्सेप्ट यही काम कर रहा है। ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट विजडम है, पर क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज ये समय की डिमांड है कि मल्टीमीडिया के थ्रू हम उस गुरुकुल के कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लाएं और उससे हमें शिक्षा मिले। हैव नो नेशनल एंड रीजनल बाउंड्री, सबसे बड़ा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू वायरलेस नेटवर्क, हैव नो नेशनल एंड रीजनल बाउंड्री, एंड लर्निंग एंड लिविंग आर ग्लोबल ह्यूमन इशू, एंड सो इज द एजुकेशन। फैसिलिटेटर्स जॉब इज टू हेल्प टू मैनेज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब नाउ जो है नेक्स्ट में, अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन ऑफ द हार्ट। हम माइंड को एजुकेट करते हैं पर हार्ट को एजुकेट करने की बात नहीं करते। जितने एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे कितना भी एडवांस कंप्यूटर आ जाए, जो रोबोटिक कॉन्सेप्ट की भी जब हम बात करते हैं, सोचते हैं कितना भी डेवलप हो जाए, कुछ हो जाए, किंतु वहां जो है हार्ट जो है वो मिसिंग।
देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि वहां सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उससे कंप्यूटर नहीं चलेगा जब तक उसमें वायर्स नहीं होगा। वायर्स भी होगा तो जब तक उसमें करंट नहीं होगा वो कंप्यूटर नहीं चलेगा, और करंट होने के बाद भी नहीं चलेगा जब तक यूजर नहीं होगा। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन विजडम, ह्यूमन जो है, जो आत्मा है, वो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो यूजर है। जब तक वो नहीं होगा, वो चाहे कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कंप्यूटर नहीं चल सकता जब तक यूजर नहीं होगा, चाहे वो अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो ये कहने का मतलब है। और हार्ट में जो है फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग क्या आनी चाहिए कि हमें जो है दूसरे को कष्ट ना हो, भावना जो है इस तरह की आनी चाहिए। तो वर्ल्ड फिलोसफर फ्रॉम द टाइम इमोमेरियल हैव नन दैट द हार्ट नीड्स एजुकेटिंग। जरूरत किस चीज की है अब, आज या आगे भी, फ्यूचर में भी एजुकेशन को, हार्ट को हमें टीच करना। माइंड तो टीच कर ही रहे हैं हम लोग। तो एजुकेटिंग योर माइंड विदाउट एजुकेटिंग योर हार्ट इज नो एजुकेशन। ये अरिस्टोटल ने भी ये कहा, यही बात। और यही बात हमारा एंशिएंट विजडम कहता है, वैदिक विजडम कहता है। हृदयम चेतनाधिष्ठानम एकम। जब चरक संहिता की बात करते हैं आयुर्वेद में, जो है चरक संहिता में हृदयम चेतनाधिष्ठानम एकम। अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना। देखिए मेडिकल साइंस जो है, इंडियन मेडिकल साइंस जो आयुर्वेद है और जो एलोपैथिक है, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, दोनों में क्या अंतर है? वो लोग माइंड को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। आज वो मानने लगे हैं माइंड को, और आत्मा को तो आज भी नहीं मानते वो। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, चरक संहिता आयुर्वेद जो है वो आत्मा को मानती है। हमारे इंडियन मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी विशेषता है, वो माइंड को तो मानती है, मन को तो शुरू से मानती है। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में माइंड कुछ है ही नहीं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। वो उसको ब्रेन कहते थे, पर आज वो इसलिए मान रहे हैं। कॉग्निटिव साइंस की बहुत बड़ी फैकल्टी मानचेस्टर वगैरह में या दूसरे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया है। क्यों? ये हमारे जो एंशिएंट विजडम का जो कॉन्सेप्ट, जो माइंड जो है, माइंड इज स्पेशल, वही अंतःकरण है। जिसको अंतःकरण बोलते हैं ना, वो माइंड ही है। हार्ट और माइंड दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है। इसीलिए वेदांत में मन को जो है, मनस को अंतःकरण कहा गया हो। और ये कॉन्सेप्ट आज का मॉडर्न साइंस मानने लगा है कि जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे फंक्शन नहीं होगा। बॉडी सब कुछ है, सारा बॉडी है, किंतु अगर वो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो बॉडी किस काम का। इसीलिए माइंड में प्रॉब्लम होती है तो हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, समझे ना? तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हमारा एंशिएंट विजडम का कॉन्सेप्ट है, जो आज की डेट में मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस जो है, वो उसी चीज को आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। आज वो केवल ब्रेन की बात नहीं कर रहे, वो माइंड की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए बिहेवियर साइंसेज, बहुत सारे साइंसेज आ गए। तो ये कहने का मतलब, तो ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम उतना ही कहेंगे। सोक्रेट इसीलिए कहता है कि सोक्रेट ने क्या कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज पावर और नॉलेज इज हैप्पीनेस। अब इसी को, नॉलेज केवल वर्च्यू नहीं हो सकता, नॉलेज केवल पावर नहीं हो सकता, नॉलेज केवल हैप्पीनेस नहीं हो सकता जब तक वो विजडम ना हो। विजडम का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे को, जो एक नर्सरी का बच्चा है और एक यूनिवर्सिटी का व्यक्ति है, मनुष्य है, तो नर्सरी के बच्चे के हृदय में जो भी चीज आप डालेंगे, जो संस्कार उसके अंदर आएगा, वही उसका संस्कार आगे तक चलना है। ठीक है, तो हमें संस्कार ऐसे डालने चाहिए जो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सत्यम वद, धर्मम चरा, माने सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो। ये हमारे जो है एंशिएंट नॉलेज है, स्क्रिप्चर्स के थॉट्स हैं ये। पर इसी को यदि हम अपने जीवन में अगर अप्लाई करें तो वो विजडम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि जब हम कहते हैं कि सत्य बोलो, बच्चे को नर्सरी क्लास को भी वही सिखा रहे हैं और जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसको भी वही सिखा रहे हैं, पर वो जो सिखा रहा है वही 100 बार झूठ बोल रहा है। तो वो एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाइड नहीं है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, वैसे ही अप्लाइड विजडम है, अप्लाइड एंशिएंट विजडम, अप्लाइड वैदिक विजडम है। तो वैदिक
स्क्रिप्चर्स के जो थॉट्स है उसको जब तक हम जीवन में अपनाए नहीं, जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे पॉकेट में भरा हुआ है, लाइब्रेरी में किताबें बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उपदेश देते हैं, सन्यासी हैं, सब उपदेश देते हैं, मैं भी दे ही रहा हूँ उपदेश, किंतु उसको अपने जीवन में अपनाना वो बहुत बड़ी बात है, और वही विजडम है, वही विवेक है, समझे? तो वो हमें उस चीज को लाना, ये कहने का मतलब है। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का मतलब यही है कि वो चीजें हमें लाना है, और वो जब भी पॉसिबल है उसके लिए जनरेशन चाहिए। एक साल और 2 साल पढ़ाने और उससे नहीं होगा। बच्चे को जब बच्चा जन्म लेता है, जिस समय वो सीखता है, भाषा सीखता है, व्यवहार सीखता है, उस समय उनको जो है हमें सिखाना पड़ेगा। उसके लिए पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, टीचर्स को सीखना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको सीखना पड़ेगा, और उनको वो भावना अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति के अंदर जो है वो लाना होगा। वही जो है वास्तव में अप्लाइड एंशिएंट विजडम है, अप्लाइड वैदिक विजडम है, इम्बाइबिंग है वो, उसी को इम्बाइबिंग कहते हैं। जब अपने अंदर जब उतार लिया हमने, अपने पर्सनैलिटी में वो समाहित हो गया, मिल गया, घुल मिल गया, तो हम कभी किसी को कष्ट देंगे ही नहीं, झूठ बोलेंगे ही नहीं। तो हमें उस चीज की जरूरत है, यही हम कहना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, इसको हमने ये दिखाया कि दुनिया में जो नॉलेज है उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत सारे फाउंटेन ऑफ नॉलेज इज रिटेन इन आवर इनर हार्ट, इन कंसाइंस, वो हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। द स्क्रिप्चर्स गाइड अस अबाउट दिस सत्यम वद धर्मम चरा, वन ऑफ द बॉडीज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड द विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो 5 कोश की बात करता है उपनिषद, जो तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, विज्ञान में कोश 90% ऑफ द ह्यूमैनिटी इज पार्शियली और कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस इग्नोरेंस ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज क्रिएट्स पार्शियल लिविंग एक्सपीरियंस। अब आगे देखिए, जो ये है कोश, विज्ञान में कोश। अब वैदिक साइंस जो है, वैदिक विजडम जो है, द ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एनर्जी बॉडी। 5 एनर्जी में क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले मनोमय कोश है। वो मनोमय कोश इज द जो है वो जो है मेंटल बीइंग है, मेंटल चीज। उससे पहले है फिजिकल बॉडी, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा कोश जो है वो मनोमय कोश है, मेंटल बीइंग, द माइंड, द सबकॉन्शियस and the 5 indriyas. Behind all these is the real form, that is the self, purush, soul. माने जो ये कह रहा है। फिर the modern science thinks that the concept of soul is only a speculation, nothing else. ये modern science कहता है। Ancient Ved या ancient Vedic wisdom क्या कहता है? Retains core concept of modern science, but also has capacity to include and develop new thoughts, may pave the way for further investigation. अब ये कॉग्निटिव साइंस में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कॉग्निटिव साइंस में 6 सब्जेक्ट को लिया गया है। जो फैकल्टी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो मैनचेस्टर वगैरह में जो कॉग्निटिव साइंस है, उसमें 6 सब्जेक्ट है। उसमें 6 सब्जेक्ट में साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है, लिंग्विस्टिक भी है, और एंथ्रोपोलॉजी भी है, और बायोलॉजी भी है। तो ये 6 का कॉम्बिनेशन, ये माने माइंड को समझने के लिए, आप ये देखिए, माइंड को समझने के लिए ये 6 को एक साथ लिंक करना, इंटीग्रेट करना। केवल एक स्टडी लिंग्विस्टिक इज नॉट एनफ, फिलॉसफी नॉट एनफ, साइकोलॉजी इज नॉट एनफ, बायोलॉजी इज नॉट एनफ, एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट एनफ। ऑल यू हैव टू कंसीडर एट वंस टुगेदर। इनका स्टडी जो है वो कॉग्निटिव साइंस है। जो हमारे यहाँ क्या है, मीन्स ऑफ कॉग्निशन। हमारे जो इंडियन फिलॉसफी में मीन्स ऑफ कॉग्निशन तो स्टार्टिंग से है, और वो आज जो है इधर जो है 50 साल 40 साल पहले से, 30 साल पहले से ये कॉग्निटिव साइंस की बात कर रहा है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो है मेन चीज ये है कि देयर इज नीड टू लिंक इट विथ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, जिसको आज ईजीसी मानने के लिए तैयार है। आज ईजीसी ने वो कॉन्सेप्ट लाया है मॉडर्न टाइम में, जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। पहले संस्कृत का आदमी या साइंस का आदमी तक था तो वो कहता था कि मुझे तो संस्कृत आती नहीं, संस्कृत वाला आदमी कहता है मुझे साइंस ले, इससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं है।
संस्कृत का मतलब ये नहीं कि आप संस्कृत पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, उसके अंदर थॉट्स तो है ना, विचार तो है ना, उसको आप इंटीग्रेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करो, आप मेडिकल साइंस में करो, जहां भी करो, और देखो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो उसको अपनाओ, नहीं मिलता है निगेटिव मिलता है तो उसको छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो, कौन मना कर रहा है। पर आपको उसके लिए ये कहना पड़ेगा कि नॉलेज कोई भी हो वो बेकार नहीं होता, हमें उसी चीज को ध्यान देना है। जो ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न एजुकेशन की बात जब हम करते हैं, वो हमें ये एक संस्कृत के आदमी को भी साइंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, साइंस वाले को संस्कृत को नेग्लेक्ट नहीं करना है, को नेग्लेक्ट नहीं करना है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को, भले ही आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो, पर आप धर्म को डिनाई नहीं कर सकते। उसी तरह से धार्मिक व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। मैंने रिजिड नहीं होना, हमें एक चीज को बैठ करके सोच करके और उस कार्य को जीवन में अप्लाई करना है, यही विजडम है। तो इट विल बी वर्थ वाइल टू कंसीडर ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये तो हो गया। अब आगे अब जो है जरूरत किस चीज की है, हमें जो है वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेटर्स यूज ऑफ हेड डोमिनेट टीचर। हेड का मतलब कि जब हम बात करते हैं तो टीचर्स की बात करते हैं। एनी डिस्टर्बेंस? हेलो 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 Yes, sir. हेलो, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Sir, we can see that. Yeah. Hello. There is some disturbance in voice noise. Okay, sir. Let me check, sir. Let me check. Participants, please mute your mics. I think it is coming from RC 69. Ma'am, you can just mute her. Now it's okay? Yeah, yeah. Now Yes, you are sir. hearing? Now it's Yeah. okay, sir. Yeah, yeah. हाँ. Please. So here is the diagram you are seeing, all of you. Holistic education. There is a holistic education: head, hand, or heart. Three are main. Head is related to the knowledge, and hand is related to the skill, and heart is related to the attitude, sentiment, behavior, etc. So holistic education is needed. According to the Vedic wisdom, whatever the thoughts in the Vedic wisdom, that is the holistic concept, and that is needed in the modern education. So educator use of head dominates teachers, skilled workers, all non-teaching staff use of hand dominates, and then incorporating the plus positive attitude of heart, purification of conscience makes the education whole. अब इसमें क्या है कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, उसका भी इम्पोर्टेंस है, जो नॉन टीचिंग है उसका भी इम्पोर्टेंस है, और जो स्टूडेंट्स है उसका तो इम्पोर्टेंस है ही। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज हम पढ़ाएं, या जो भी चीज, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या ट्रेडिशनल एजुकेशन का क्षेत्र हो, जो भी हो, वहां हमें ये देखना है कि सेंटिमेंट मिस तो नहीं हो रहा। हमारा व्यवहार अपने साथियों के प्रति, टीचर के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा है, वो चीज पे हमें जरूर ध्यान है। हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसे जो है समाज को कितना नुकसान होगा, फायदा तो होता है ठीक है, पर नुकसान लोगों को क्या होगा उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कहने का मतलब है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने सबका विकास हो, ये हमें, और सबका विकास हो, और आगे देखिए रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीडर ही है। अब हेड, हार्ट और हैंड। हेड से व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस, फिर व्हाट डू आई फील अबाउट दिस, हार्ट की बात जब हम करते हैं, एंड व्हाट डू आई डू अबाउट दिस। तो रिस्पॉन्सिबल एबिलिटी जो है वो है द फोकस ऑफ एजुकेशन हैज टू शिफ्ट फ्रॉम द हेड एंड हैंड लर्निंग टू द हार्ट। ये हमें मेन है हमारा गोल कि फोकस ऑफ द एजुकेशन हैज टू शिफ्ट फ्रॉम द हेड एंड हैंड लर्निंग टू द हार्ट। अब यहां जब मैं हार्ट की बात कर रहा हूं तो
हार्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारे हार्ट से है। हार्ट का मतलब, ये तो मैंने एक जनरल टर्म यूज किया है यहाँ पे हार्ट लोगों को समझने के लिए। तो वो हार्ट एक्चुअली कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लर्निंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो कि हार्ट जो है वो एक तरह से अगर सरफेस अगर हम ले लें तो वो फिजिकल हो गया, और कॉन्शियसनेस जो है वो मेन है, जिसको कि हम, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। हम पता है पर उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे नैव वाचा नैव मनसा ज्ञातुम शक्यो न चक्षुषा, उसको कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप से हम कॉन्शियसनेस को नहीं देख सकते, हम माइंड को नहीं देख सकते, और हार्ट को देख सकते हैं, ब्रेन को देख सकते हैं, समझे ना। तो वो ये कह रहा है कि कॉन्शियसनेस, द हार्ट इज द सीट ऑफ लव। चित्त, जिसको जो, जिसके लिए एक दूसरा वर्ड है चित्त। जो चित्त जो है उसमें ही प्रेम, करुणा और चेतना, ये सब उसके अंदर ही विद्यमान होता है। तो हमको उसको बाहर निकालना है, ये कहने का मतलब है। और ये चीजें प्रत्येक, चाहे वो एजुकेशन में लीडर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ कोई भी हो, स्टूडेंट हो, सभी को ये चीजों को समझने की आवश्यकता है। ये कहना चाह रहा। अब ये देखिए हमारा एंशियक विजडम इसीलिए क्या कहता है, ओम असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृतम गमया। अभी कितना इंपॉर्टेंट है कि असतो मां सदगमया, माना सत की ओर लेकर के चलो, सत की ओर सतगमया। सतचित आनंद की जब हम बात करते हैं, सच्चिदानंद की बात करते हैं, तो वहां सत जो है मूल है, चित और आनंद की हमें जरूरत है। देखिए अब आत्म तत्व की का मुख्य रूप से विशेषण सच्चिदानंद है। उसमें 3 टर्म है, सत, चित और आनंद। चित्त जो है, मैंने बताया कि चित्त जो है कॉन्शियसनेस है, विजडम है, नॉलेज है, सब उसके अंदर है। और आनंद जो है वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस का मतलब सामान्य हैप्पीनेस नहीं, एंजॉयमेंट नहीं, रियल हैप्पीनेस, जिसको हम दूसरा टर्म अंग्रेजी में कहें तो ब्लिस है, आनंद है। सत्य, चित्त और आनंद। अब चित्त और आनंद 2 चीज हो गए, 2 क्वालिटी हो गई किसकी, ब्रह्म की, आत्म तत्व की। और तीसरा क्या है, वो सत्य है। तो आनंद और हैप्पी माने नॉलेज, बोथ आर आइडेंटिकल, नॉट डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। इवन द सत इज नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि सत्य जो है सत्य पे वो प्रचालित होता है। इसके लिए हमने जो है हमारे जो वैदिक वेद हैं उसमें 3 टर्म दिया है, बहुत बढ़िया टर्म दिया है। क्या दिया है कि सत, धर्म, ऋत। सत्य, धर्म और ऋत। इस ऋत जो है वो ब्रह्मांड का नियम है, जिससे प्रचालित होता है। किसके माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और सत्य जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जो वास्तव, जो हमेशा जो है विद्यमान है। तो ये तीनों क्वालिटी जो है वो आत्मा की है, ब्रह्म की है, सत्य, चित्तानंद। तो उसी को यहां कह रहा अस्तो मां सदगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधकार में जी रहे हैं। अभी कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की, जब हम वैदिक विजडम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये कितना सटीक ये उदाहरण है वेद का। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम जितने कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने भी बड़े प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, किंतु हम अंधकार में भटक रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए हमें अंधकार से ज्योतिर की ओर ले चलो। ज्योतिर क्या है, वो सत्य, चित, आनंद है। चित और आनंद। मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अमृत, अमरता चाहिए। अब अमरता का जब अमरता, अब ये सब देखिए इतने टेक्निकल टर्म है कि सामान्य आदमी जो है वो ये तो सोचने लग जाता है कि अमरत्य का मतलब ये हो गया कि जो है वो आदमी कभी मरे ही ना। ऐसा नहीं है। अमर्थ का मतलब वही है, सत्य, चित, आनंद। अमर्थ का मतलब ये है कि आदमी जो है वास्तविक सुख प्राप्त करना, वास्तविक आनंद प्राप्त करना,
और वो कब संभव है? जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। रियल विजडम जो है, जब हम उसको समझ पाएंगे, उसको हम केवल किताबों में नहीं, पॉकेट में रखा हुआ है किताब, डिक्शनरी लाइब्रेरी में रखी हुई है, बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, हजारों किताबें पढ़ी हुई हैं, हजारों लेक्चर दिया हुआ है, वो सबसे कोई लाभ नहीं होना जब उसको हम अपने जीवन में ना उतारें। ये इसकी बात कर रहा है, तो वही बात यहाँ कर रहा है, मृत्यु माँ अमृतम गमया। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अमरता चाहिए, वहां हमें ले चलो, ये जो है प्रार्थना कर रहा है। अब जो है कॉन्क्लूजन में जब हम आएंगे, तो कॉन्क्लूजन के पहले जो है मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि जब ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस इसकी बात करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की बात करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो वेद के विचार हैं, जो वैदिक शास्त्रों के विचार हैं, उनको हमें अपने जीवन में अपनाना, केवल उनको पढ़ना नहीं, सीखना नहीं। लोग कहते हैं ना, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत बढ़िया कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ जी, मैं तो डेली टेम्पल जाता हूँ और डेली भगवान की पूजा करता हूँ। तो दूसरा आदमी कहता है यार ये तो बड़ा धर्मात्मा और इससे बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ठीक है, और दुनिया भर के झूठ बोलता है वो, और बहुत सारी चीजें करता है, तो वो कैसे वो जो है आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया? हमें उस एजुकेशन की जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत क्या है, भले हम पूजा के लिए जाएं न जाएं, हमारा जो शास्त्र में जो चीज निर्देश है उसको हम अपने जीवन में, जैसे हमने कहा कि सत्यम वद धर्मम चरा। अब एक श्लोक है जिसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए भी और सभी के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, और आप लोग मोस्टली आप लोग जानते भी होंगे उसको। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड ये भी श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो ये नहीं कर रहा कि आप किताब पढ़ोगे तब ये आदमी को 3 चीजों की जरूरत होती है, आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजों का। आदमी ये चाहता है ना कि मैं जीवन भर जो है हमारी अम्मी अधिक से अधिक लंबी आयु हो, स्वस्थ आयु हो, और फिर विद्या प्राप्त करना चाहता है कि मैं इतना नॉलेज प्राप्त कर लूं कि मेरे से ज्यादा कोई नॉलेज ही ना प्राप्त करे, और यश प्राप्त करना चाह रहा, आयु भी मिल गया आपको, स्वस्थ भी हैं आप, नॉलेज भी है आपके पास, किंतु आपको कोई जानता नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि हर एक लोग मुझे जाने, मेरा यश हो, आयु, और उसके बाद स्ट्रेंथ, बल, आंतरिक बल भी और शारीरिक बल भी। आप हर एक आदमी ये 4 चीजें चाहता है, उसका लक्ष्य होता है कि ये 4 चीजें हमें जीवन में मिले। तो शास्त्र क्या कहता है कि जो व्यक्ति बड़े लोगों का सम्मान करता है, जिसका व्यवहार सही होता है, बड़े लोगों का, अपने माता पिता का, टीचर का, बड़े भाई का, या ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे जो सीनियर हैं उनका, माने जिस किसी का भी अगर जो व्यक्ति सम्मान करता है, तो ये 4 चीजों के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, ये 4 चीजें उसे अपने आप मिलती है। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बड़ा अतिशयोक्ति है, ऐसे कैसे मिल जाएगा, हम किसी का सम्मान करें? तो उसको हमें समझने की जरूरत है, उसके लिए विजडम की जरूरत है, हमें ये सोचना है कि वो कैसे मिलेगा। अब जैसे हम किसी का भी बड़े का सम्मान करेंगे, सम्मान करने का क्या मतलब है कि हम उसके साथ जरूर कुछ चाहे 5 ही मिनट बिताएंगे जरूर, तो क्या होगा कि वो जो भी वो उसने अनुभव सीखा हुआ उससे हम सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा। पता है ना कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, स्वस्थ भी रहेंगे, स्वास्थ्य की बातें भी सीखेंगे, बहुत सारे। मैंने कहने का मतलब कि नित्यम वृद्धोपसी का मतलब ये नहीं कि हम बड़े को पैर छू करके प्रणाम कर लिया जी, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया जी, हो गया सम्मान, ये नहीं। वो बात वहां दूसरी कह रहा है कि आप ये बड़े लोगों का के संसर्ग में आप आओगे तो उनसे अपने आप ये चीजें, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने अनुभव से गेन किया है, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है जो आपके पास नहीं है। आपको सब कुछ नॉलेज है, पर अगर अनुभव नहीं है और कोई ऐसी सिचुएशन आती है। अब एक श्लोक है कालिदास का, जो जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम सताम संदेह पदेषु वस्तुषु
प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तिया। अब वो कहता है कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, व्यक्ति के लाइफ में, चाहे वो व्यक्तिगत लाइफ हो, जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आदमी ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाता हूं तो इधर भी खाइए और इधर भी खाइए, तो आदमी वो क्या करे। अच्छा, उस समय किताबों का जितने नॉलेज है वो सब कोई रिकॉल नहीं कर पाता, समझ में नहीं आता है, अपने सीनियर से पूछता है, उसको भी नहीं समझ में आता। तो कहता है कि अंतःकरण प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का हृदय अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसके अंदर दूसरों के प्रति कभी गलत भावना आती ही नहीं है, जैसे ऋषि लोग थे हमारे, तो वो अगर जो है, जो उनके अंतःकरण में विचार उठते हैं उसके अनुसार अगर वो कार्य करेगा तो वो कभी गलत होगा ही नहीं होगा। तो ये सब कहने का मतलब है। तो जब कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है मैंने यही कहा है कि एन एजुकेशन लीडर, चाहे वो वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। Thus becomes a role model to train other educators. अब जो है थर्ड पॉइंट जो है, there is a difference between earning a living and living a life and leading a life. Then fourth point, a true leader lives a balanced physical, emotional and spiritual life and leads by example. Then free from pleasure and pain is ultimate goal of life. That is the mukti for a common man. Ya vidyasa vimukti, worldly life. So this is my presentation. This was the last slide. Okay, sir. Akhil, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. And it was a really good presentation. How beautifully you explained the relationship between the Atma Sakshatkar and Swadhyay. It was very beautiful. Like we used to think that both of them are separate identities. But like you told that when Swadhyay is actually ultimately going to lead to Atma Sakshatkar. Yes. Very good, sir. Now the session is open for the participants if they want to ask any question to the sir. Any question? All right, sir. If there is no question, I'll thank you very much for the wonderful lecture, and we are looking forward for your another session, and that is on I guess 23rd. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, participants, Thank you, sir. please wait. Shortly, I guess Umesh sir is going to join us. Before that, I guess Gunit ma'am has to say something Yes, sir. for the next activity. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, Ramnath, sir. I think it was wonderful listening to you. And I think we've grown a little more wiser today. Thank you so much. And I would like to take this opportunity to thank all the attentive listeners that we have had throughout the day. Thank you all for your attentive listening and of the day one of the FDP. Now we have some activities planned for all of you, all the participants. As they rightly say that, tell me, I will forget, show me and I may not remember, involve me and I'll understand. So therefore these activities are planned to involve all the participants in the FDP, and we look forward to an active participation from the participants specifically. And I shall be requesting Dr. Ajit Batra sir and Umesh sir to take forward these activities planned for the participants in some time. Till that time, I think all of us can reflect back of what we've learned in the day one
And I'm sure there are a lot of information that has come out today. And it's always best when we reflect back on what we have gained throughout the day. It is going to help us, and perhaps write it somewhere. These activities would also help you understand it better. And I'm sure it will be engaging for all of you. I think we'll wait for some time. Yeah. I request. Ajit Patra sir is here. Sir. Okay, so hopefully you guys have you have got the list of sessions. Hello, the sessions which for which you have to give us an assignment in the form of like a learning outcome and the summary. Okay, so and that is session wise. So we are counting from the session 1, which is the inaugural session. So that is session 1. Until from that session 1, with the last session, which is of Professor Neeraj Gupta, is a 22nd session. Okay, 22 sessions. So like we have 22 sessions. I have uniformly divided the sessions and given you the list. So like this is a 4th session for today. The first one was inaugural, then was a session of Nina ma'am, and then was a session of Arvind sir, and this is a session which is a 4th session of Ramanath sir. And then 5th session will be tomorrow at 9 o'clock in the morning, because the speaker is from USA, and because of the time difference, we have to start a little bit early tomorrow. So I request all of you to join sharp